اللہ کا عذاب اور انبیاء کرام کے قصے، سبق آموز تاریخی واقعات۔ قرآن مجید انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ کہانیاں نوجوانوں کے لیے ایک ہدایت کی روشنی ہے جو زندگی کے اصولوں کو بہتر سمجھنے اور اپنی راہ میں واضح برتاؤ کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آئیے ان اہم واقعات کے ذریعے اللہ کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم مسلسل انکار کرتی رہی۔ ان کے انکار اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ایک عظیم طوفان بھیجا۔ صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے نجات پا سکے۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بس ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سورۃ الاعراف 60۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مستقل مزاجی اور صبر و استقامت ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بنیاد ہیں، اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ قوم عاد، بلند و بالا عمارتیں بنانے والی ایک عظیم قوم، اپنے غرور میں اللہ کو بھول گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ کے باوجود انہوں نے شرک اور نافرمانی جاری رکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر 107 راتیں اور 8 دن تک خوفناک آندھی مسلط کر دی جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح گرے ہوئے تھے۔ سورۃ الحاقہ 6-7۔ یہ واقعہ ہمیں عاجزی اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے صحیح استعمال کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جو اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر سکتی ہے۔ قوم سمود نے نشانی دیکھنے کے بعد بھی نافرمانی کی حد پار کر دی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بھیجی ہوئی معجزاتی اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس عمل پر اللہ نے ان پر ایک شدید چیخ اور زلزلہ نازل کیا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بس ان کو زلزلے نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف 78۔ یہ سبق نوجوانوں کو معجزات اور نشانیوں کو قبول کرنے کے ذریعے ایمان مضبوط کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قوم صدوم، جسے قوم لوط بھی کہا جاتا ہے، اخلاقی زوال کے بدترین درجے پر پہنچ چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو ٹھکرا کر وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتی رہی۔ بالآخر اللہ نے ان کا شہر الٹا دیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر ہم نے اس بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ سورۃ الحجر 74۔ یہ واقعہ نوجوانوں کو اخلاقی راستے پر چلنے کی اہمیت اور برائیوں کے انجام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قوم مدین ناپ تول میں کمی، بے ایمانی اور دھوکہ دہی میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی لیکن وہ باز نہ آئے۔ ان پر زبردست گرمی اور زلزلہ مسلط کیا گیا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بس ان کو زلزلے نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف 91۔ یہ نوجوانوں کو دیانت داری اور ایمانداری کی اہمیت سمجھانے کا درس دیتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور بنی اسرائیل پر سخت مظالم ڈھائے۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم ریڈ سی میں غرق کر دیا۔ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سورۃ القصص 40۔ یہ نوجوانوں کو ظلم و ناانصافی کے انجام سے ڈرتے ہوئے انصاف کو پسند کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس نے اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ سورۃ یونس 98۔ یہ واقعہ نوجوانوں کو عاجزی اور اللہ سے معافی طلب کرنے کی افادیت سمجھاتا ہے۔ یہ تمام واقعات نوجوانوں کو ایک واضح پیغام دیتے ہیں
अल्लाह की नाफरमानी से इज्तिनाब करें, इसके अहकामात की पैरवी करें और आजिज़ी, सदाकत और दियानतदारी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। इन कहानियों को समझने और उनसे सबक लेने से हम अपने किरदार को बेहतर कर सकते हैं और दुनिया में कामयाबी के साथ साथ आखिरत में निजात पा सकते हैं। क्या वो ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि देखिए उन लोगों का अंजाम किया हुआ जो उनसे पहले थे। सूरत गाफिर 21। ये तारीख़ी कहानियाँ हमारे लिए मशल्ला हैं। दोस्तों के साथ ये इल्म शेयर करें और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। जिन्नात की अक़साम और उनकी ताकतें। जिन्नात की अक़साम और उनकी ताकतें। इस्लामी तालीमात और रवायात के मुताबिक जिन्नात एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया है। ये इंसानों से मुख्तलिफ हैं। इनकी अपनी दुनिया, ताकतें और सलाहियतें हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र मिलता है। खुसूसियात। ये सबसे ज़्यादा सरकश, नाफरमान और ताकतवर जिन्नात में शुमार होते हैं। ये आमतौर पर इंसानों को गुमराह करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने और शैतानी कामों में मुलव्वस करने के लिए जाने जाते हैं। ये जादूगरों के साथ मिलकर काला जादू करने में मदद देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर ऐसे शैतान मुसल्लत कर दिए जो इन्हें बुरे अमाल के लिए हलिफाकसाती रहते हैं। सूरत अल-ज़ख़रफ़ 36। ताकत। ये शक्ल बदलने, हवा में उड़ने और जादूगरों के जरिए इंसानों पर असर अंदाज होने की ताकत रखते हैं। खुसूसियात। ये इंतहाई खतरनाक, बड़े जिस्म वाले और ताकतवर जिन होते हैं। ये निहायत तेज रफ्तारी से हरकत कर सकते हैं और भारी चीजें उठाने की सलाहियत रखते हैं। ये आम जिन्नात के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जिक्र आया। एक अनफनीत जिन ने कहा, मैं इसे मलिका सबा का तख्त आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठिए। सूरत अल-नमल 39। ताकत। ये बड़ी बड़ी चीज़ें एक लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और बाज़ सूरतों में इंसानों पर भी हमला आवर हो सकते हैं। खुसूसियात। तमाम शैतान जिन्नों में से हैं, लेकिन हर जिन शैतान नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों को गुमराह करना, वसवसे डालना और बुराई की तरफ माइल करना होता है। ये लोगों के दिलों में बुरे ख्यालात डालते हैं, उन्हें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस उसे दुश्मन जानो। सूरत फातिर 6। ताकत। ये इंसान के दिल में वसवसे डाल सकते हैं, उन्हें गुनाहों की तरफ माइल कर सकते हैं और बाज़ औकात ख्वाबों में भी आ सकते हैं। खुसूसियात। ये वो जिन्नात हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये शैतानों के खिलाफ होते हैं और बाज़ औकात नेक इंसानों की मदद भी कर सकते हैं। कुछ मुसलमान जिन मसाजिद में इबादत करते हैं और अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते हैं। कुरान में जिक्र है, और ये कि हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ नाफरमान। बस जो मुसलमान हो गए वो सीधे रास्ते पर हैं। सूरत अल-जिन 14। ताकत। ये आम जिन्नात की तरह गायब होने, शक्ल बदलने और हवा में सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये शर के बजाय खैर के कामों में ज़्यादा मशगूल होते हैं। खुसूसियात। ये वो जिन्नात हैं जो ना मुकम्मल नेक होते हैं और ना ही मुकम्मल बुरे। ये भी इंसानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। इनके अपने खानदान, कबीले और कम्युनिटीज होती हैं। बाज़ दफ़ा ये इंसानों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ताकत। ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। पानी, जंगल और पुरानी इमारतों में रहना पसंद करते हैं। खुसूसियात। हर इंसान के साथ इसकी पैदाइश से लेकर मौत तक एक कैरनीन साथी जिन होता है। ये हर वक्त इंसान के साथ रहता है और इसे बुरे कामों की तरफ माइल करने की कोशिश करता है।
लेकिन नेक और साले लोग उनके असरात से महफूज रहते हैं। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ एक दिन कैनियन मुकर्रर किया गया है। सही मुस्लिम 2814। ताकत ये दिलों में वसवसे डाल सकता है, बुरे ख्यालात पैदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र से इसका असर कम हो जाता है। जिन्नात को अल्लाह ने मुख्तलिफ ताकतें अता की हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झैल है। एक शक्ल बदलना। जिन्नात किसी भी जानदार चीज़ की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर या कोई और मखलूक। 2 तेज़ी से सफ़र करना। जिन्नात इंतहाई तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बाज़ को सेकंडों में हज़ारों मील का फासला तय करने की सलाहियत हासिल है। 3 खुफिया बातें सुनना। कुछ जिन्नात आसमानों की बातें चुराने की कोशिश करते थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर शहाब साक़ित गिरने वाले सितारे छोड़ना शुरू कर दिए। 4 किसी चीज़ को गायबा हरकत देना, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इफ़रीत जिन ने कहा था कि वो मलिका सबा का तख्त पलक झपकने में ला सकता है। 5 इंसानों पर असरअंदाज होना। जादूगरों और शैतानों के साथ मिलकर बाज़ जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए हमें दर्ज झैल अज़कार और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आयतल कुर्सी, सूरत अल बकरा 255 हर नमाज के बाद और सोने से पहले पढ़ना मुफीद है। मौज़ती, सूरत अल फलक और सूरत अल नास सुबह और शाम पढ़ने से जिन्नात और शैतानों के असरात से हिफाजत मिलती है। नसम अल्लुआन कहकर खाना पीना और घर में दाखिल होना। अजान देना। जिन्नात अजान की आवाज़ से भाग जाते हैं। जिन्नात एक मखलूक है जो इंसानों की तरह मौजूद हैं, लेकिन उनकी दुनिया अलग है। कुछ जिन्नात नेक और मुसलमान होते हैं, जबकि कुछ शैतानों का किरदार अदा करते हैं। उनके शर से बचने के लिए हमें अल्लाह का जिक्र और दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें।